provided by Sanskar Group of Schools. Students, I am your mathematics teacher, and in this lecture we will do exercise 6A part 2nd. Start with question number 2nd. Here the question number 2nd. Subtract minus 8xy from 7xy. Means we subtract this number from 7xy. According to question, आपको 7xy में से माइनस 8xy को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, open the bracket, minus into minus plus 8xy. Check, are they like terms? Yes, they are like terms. So we add them, we get 15xy. In other way, we take common xy, add 7 and 8, we get 15. So answer is 15xy. Now students, question number 2nd, part 2nd. Subtract x square from minus 3x square. Minus 3x square से x square को subtract करना है. Students, we take minus common लेंगे, then we change the symbols of 3x square and x square. 3 plus 1 4. 4x स्क्वायर, बाहर माइनस था तो आंसर आ गया 4x स्क्वायर, वो भी माइनस. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सब्ट्रैक्ट x minus 1 from 4y minus 5x. x minus y from 4y minus 5x means आपको 4y minus 5x में से x minus y ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में इसको सब्ट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी ओपन द ब्रैकेट. वी नो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है देन चेंज द सिंबल्स इनसाइड द ब्रैकेट. वी गेट 4y minus 5x minus x minus into minus plus y. Now we separate the similar terms like x and y. So here 4y and y. Similarly minus 5x minus x. हमने similar terms को separate किया. अब आगे इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स. टेकिंग यहाँ पे 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5. डायरेक्ट आप 5y लिख देंगे. इन अदर वे आप y कॉमन निकालिए. 4 plus 1 5 है. यहाँ से माइनस कॉमन होगा, ठीक है, तो ये अंदर बचेगा 5x plus x. 5y minus 5 plus 1 that is 6. That is 6x. 5y minus 6x क्योंकि माइनस का सिंबल. So I got the answer. When we subtract x minus y from 4y minus 5x, then we get the result 5y minus 6x. I hope student you got it. While you solve these sums, must care about the symbols, positive or negative symbols. Now part 4. Students, subtract a square plus b square minus 2ab from a square plus b square plus 2ab. a square plus b square plus 2ab में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ब्रैकेट में रखेंगे आप नंबर्स को. a square plus b square minus 2ab. अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सिंबल चेंज होंगे, ब्रैकेट ओपन होगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
ये प्लस है तो माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा और ये माइनस माइनस प्लस का होगा। स्टूडेंट्स, नाउ चेक a square and a square. When we subtract a square from a square, we get 0. Similarly, b square and b square. When we subtract b square from b square, we also get 0. But here plus 2ab and plus 2ab, that is plus 4ab. Let's solve this. A square minus a square, हमने इकट्ठा किया a square को. सिमिलरली हमने b square और b square को इकट्ठा किया, नीचे प्लस का सिंबल है. इधर आपने प्लस 2ab प्लस 2ab मीन्स लाइक टर्म्स को आपने एक साथ लिखा, जो हमने बाकी सम्स में किया है. एक्सरसाइज 6 से पार्ट फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने ऐसे करना सीखा है. मीन्स सिंगुलर टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए. a square minus a square, 0 a square, that is 0, that is also 0. 0 plus 4ab. When I add 0 in 4ab, I get the answer 4ab. That is my answer. It's very simple, beta. I hope you got it. Now, part 5, question number 2. Subtract x square minus y square from 2x square minus 3y square plus 6xy. Okay, 2x square minus 3y square plus 6y में से माइनस करना है. याद रखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में इनक्लोज रखना है इसको, क्योंकि माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं. सो मस्ट केयर अबाउट द ब्रैकेट. डोंट फॉरगेट टू राइट द ब्रैकेट. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है, सिंबल चेंज होंगे, सोल्व करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर. अब x स्क्वायर y स्क्वायर और 6y, 3 टर्म्स गिवन है, तो लाइक टर्म्स को सेपरेट करके सोल्व करते हैं. सबसे पहले मैं x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को इकट्ठा रखता हूँ. 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. आफ्टर दैट मैं y टर्म्स को इकट्ठा करता हूँ. 3y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर. देन आफ्टर प्लस 6y. ये तो सिंगल है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अब 2 और माइनस 1, 2 minus 1 that is 1. So here I got x square minus 3 or plus 1, I got minus 2y square plus 6xy. So I got the answer. Students, similarly we will do exercise 6 parts. Okay, in 6 part we subtract x minus y plus 3z from 2z minus x minus 3y. It's similar like part with. सबसे पहले तो इस टर्म को लिखेंगे 2z minus x minus 3y. 2z minus x minus 3y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको x minus y plus 3z. Students, there are 3 terms x, y and z. First we open the bracket, then we combine the like terms, then solve to find the answer. 2z minus x minus 3y, it is 3 beta, this is 3, minus x minus into minus, that is plus, and minus into plus, that is minus. Students, now we separate the like terms. 2z here minus 3z. Okay, minus x minus x minus
-3y plus 1. Solve them. -3 plus 2. So I got answer -z. Minus minus -2. -1 plus -1 or -1, that is -2. Okay बेटा, -2x. -3 plus 1, -3 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2। आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा z प्लस 2x प्लस 2y। दोनों ही आपके आंसर। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमने जितने भी सम्स किए हैं, बस एक चीज का ध्यान रखा है, यहाँ पे आपको अनलाइक टर्म्स की बनती, 2 और मोर देन 2। हमने सबसे पहले तो सोल्व किया, सोल्व करने के बाद लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठा किया, फिर जो भी आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है इंटीजर्स को सोल्व करने का, उसको यूज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की। हाँ, इसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए जो हम आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इंटीजर्स, जिसमें आप सीख चुके हैं, लाइक 2 - 3 दैट इज -1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे -z क्यों आया, बिकॉज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 3 from 2 I got -1, that's why I write here -z। तो ये कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स में आपको सिखाया जा चुका है, प्लीज आप उसको जरूर देखिए। Students, now it's time for question number 3. Very good. Subtract 2a minus 3b plus 4c from the sum of these numbers. तो स्टूडेंट्स, मैं इस सम को 2 स्टेप में करने वाला हूँ। स्टेप फर्स्ट में मैं सबसे पहले तो इनको ऐड करूंगा, और स्टेप 2 में इनका जो एडिशन के बाद वैल्यू आएगी उसमें से 2a minus 3b plus 4c को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ऐड, आपको ऐड करना है। लिख लीजिए a plus 3b minus 4c प्लस, देखिए आप प्लस कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल सेम रहते हैं, ठीक है। फिर भी मैं ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। याद रखिए, जब आप ऐड कर रहे हैं नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें। प्लस -2b प्लस 3c -a। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने जो 3 नंबर्स गिवन थे उनको ऐड किया या कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस 3b माइनस 4c, सिंबल एज इट इज रहेंगे, प्लस 3b माइनस 4c प्लस इंटू माइनस, इस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 2b प्लस 3c और माइनस a। नेक्स्ट स्टेप मेरा, अब यहाँ पे a, b और c 3 वेरिएबल्स गिवन है, तो 3 वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले a से स्टार्ट करते हैं, a प्लस 4a माइनस a, ओके। अब प्लस 3b प्लस 3b माइनस 2b। अब c को चेक कर लेते हैं, -4c माइनस 4c प्लस 3c। ठीक है, ये सब करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक छोटी सी भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो व्हाइल डूइंग दीज सम्स प्लीज पे अटेंशन, योर स्मॉल मिस्टेक मे बी, आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है आपके सम को गलत कर सकती है। सो प्लीज
Okay students, now we get these results. These like terms. Add them. 4 plus 1, 5. 5 minus 1, that is 4. 4a. वैसे भी a to a कैंसिल हो जाएगा, 4a ही बचेगा. 3 plus 3, 6. 6 minus 2, minus 4. सॉरी प्लस 4b. क्योंकि प्लस का 6 है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4b आएगा. देन आफ्टर माइनस माइनस, दोनों माइनस के ऐड होंगे, माइनस 8 होगा, प्लस 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और वो भी आंसर माइनस में आएगा. क्यों? क्योंकि माइनस 8 प्लस 3 है, माइनस 5c. तुम्हारी फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट. फर्स्ट स्टेप में मैंने इन सभी नंबर्स को ऐड करके एक रिजल्ट्स प्राप्त कर लिया. अब मेरा सेकंड स्टेप होगा. अब ये नंबर जो रिजल्ट्स मुझे मिला है उससे सब्ट्रैक्ट करना है. देखते हैं. 4a प्लस 4b माइनस 5c माइनस a प्लस 3b माइनस 4c. Students, open the bracket. 4a plus 4b minus 5c minus a minus 3b minus minus plus 4b. सिंबल चेंज हो गई, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया. अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठी रख लीजिए. 4a माइनस a, इसके बाद प्लस 4b माइनस 3b माइनस 5c प्लस 4b. सोल्व किया कितना है स्टूडेंट्स? ये आपका आ जाएगा 3a. ओके ना? इसको सोल्व करेंगे प्लस b आ जाएगा और इधर माइनस c आ जाएगा. सो 3a प्लस b माइनस c. 3a प्लस b माइनस c. तो यहाँ पे मैं आंसर नोट कर देता हूँ. 3a प्लस b माइनस c. सो आई गॉट द आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा. स्टेप फर्स्ट में हमने तीनों टर्म्स को ऐड किया, एक रिजल्ट मिला. अब उस रिजल्ट में से 2a माइनस 3b प्लस 4c को सब्ट्रैक्ट किया तो लास्ट में आंसर मिल जाए. ठीक है, चलिए आप फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है. 1 minute. Okay, here is the question number 4. Subtract the ये शायद इंटरचेंज हो गया, मिक्स हो गया, डोंट वरी. Subtract the sum of 8m minus 7n plus 6p square and minus 3m minus 4n minus p square from the sum of these two numbers. Two numbers आपको गिवन है, उनके सम में से नीचे वाले 2 नंबर्स के सम को सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहला स्टेप में क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को और नीचे वाले दोनों नंबर्स को सेपरेटली ऐड कर दूंगा. फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा, अब उस रिजल्ट को मैं क्या करूंगा, जो ऑपरेशन बोल रखा है वो लगा दूंगा. सबसे पहले तो मेरे को एक ही काम करना है, क्या, इन ऊपर वाले दो नंबर्स को नीचे वाले दोनों नंबर्स को ऐड करना है. स्टार्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. एट एम माइनस 7n. सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट. 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर प्लस माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर. सबसे पहले तो जो ऊपर वाले नंबर हैं उनको ऐड कर दीजिए. देखते हैं क्या आता है. पहले ब्रैकेट ओपन होगी. 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर, ओके, माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी. 8m माइनस 3n कितना बचेगा, प्लस 5 है, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा 5 बचता है. नेक्स्ट माइनस 7n माइनस 4n. आई गॉट हियर माइनस 11n. Similarly,
plus 6 p square minus p square. 6 minus 1 5. So I got plus 5 p square. Step first is complete. Now step second. स्टेप सेकंड में क्या पूछे आपसे कि इनका सम, एक बार इनका सम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। पहले अपना सम को स्टेप वाइज धीरे धीरे आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे 2m प्लस 4n माइनस 3b स्क्वायर प्लस माइनस m माइनस n माइनस b स्क्वायर। सॉल्व देम। 2m प्लस 4n माइनस 3b स्क्वायर माइनस m माइनस n माइनस b स्क्वायर। 2m प्लस और माइनस तो m बचेगा, 4n में से n जाएगा प्लस 3n बचेगा, माइनस 3 है और माइनस 1 तो माइनस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे मिलता है रिजल्ट। एक रिजल्ट मेरा यहाँ पे हो गया, सेकंड मेरा यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करना है। Subtract the sum of this from this। इन दोनों के सम में से इसके सम को माइनस करना है, यानी इस नंबर में से जो ऊपर रिजल्ट मिला है इसको माइनस करना है। देखते हैं अभी स्टेप 3 लिख दीजिए। n प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको 5m माइनस 11n प्लस 5p स्क्वायर m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर माइनस 5m माइनस माइनस प्लस 11n एंड माइनस हो जाएगा 5p स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज हो m और m वाले इकट्ठे कर लो। m माइनस 5 प्लस 3n प्लस 11n माइनस 4p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर। सो आई गॉट हियर क्या मिलेगा आपको यहाँ से माइनस 4m प्लस 14m माइनस 9p स्क्वायर। तो रिजल्ट उधर लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो रिजल्ट मेरे पास आता है माइनस 4m प्लस 14n माइनस 9p स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। दोनों नंबर को ऐड करेंगे, नीचे दोनों नंबर को ऐड करेंगे, इन दोनों के एडिशन में से ऊपर वाले नंबर को जो रिजल्ट आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से बताना चाहता हूँ कि हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं प्लीज ध्यान से और सावधानी पूर्वक करें। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और आई होप हमें बिल्कुल सही उत्तर मिला है। ओके, बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत हो गया हो देन प्लीज माफ कर देना। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हेयर द क्वेश्चन नंबर 5। Subtract the sum of 8a square minus 6a square plus 9 and minus 10a minus 8 plus 8a square and अच्छा फ्रॉम -3। -3 में से इन दोनों के सम को माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 3 में से 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 10 8 माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने इन दोनों का जो सम है ना
उसको 3 में से माइनस करना है, सॉरी -3 है, ओके ओके, हियर इज -3, सो आई यूज हियर -3। अब ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व दिस। -3 माइनस 8a, इधर से माइनस का 10 आ जाएगा, -6a², उधर से प्लस का 8a² आ जाएगा, +9 और इधर से माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है ना। -3 माइनस, इधर से बचेगा -2a, यहाँ आपका आएगा +2a² और ये बचेगा +1। माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, -3 ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। -3 -1 -4 होगा, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएगी। तो मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सिंप्लीफाई 5x minus 9y माइनस ब्रैकेट में 7x plus y, आपको ये सोल्व करना है बेटा। तो ये बाकी जितने क्वेश्चंस किए उनसे तो इजी है और जल्दी हो भी जाएगा। 5x minus 9y minus 7x plus y। ओके स्टूडेंट्स, 5x minus 9y minus plus 7x और minus y, 5x plus 7x that is 12x minus 9 और minus 1 minus 10y, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x² minus x ब्रैकेट क्लोज minus 1/2 x minus 3, 1 मिनट, अब ठीक है, x minus 3 plus 3x²। ओके स्टूडेंट्स, नाउ x² minus x minus 1/2 x minus plus 3/2 minus plus minus हो जाएगा -3/2 x²। स्टूडेंट्स, डोंट नीड टू बी पैनिक, 1/2 मल्टीप्लाई में है तो सभी के डाउन में मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे 1 × 1/2 तो ये आपका 1/2x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया और ये -3/2 x² हो गया। आपको बताया ना माइनस और प्लस हमेशा माइनस ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, सो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम आपने लिया 2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सीधा 2x² minus 2x, ओके, minus x plus 3 minus 3x², ठीक है ना। 1/2 को बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल बाहर, और अंदर की ये टर्म बचेगी 2x² minus x² minus 2x, 1 मिनट, दिस इज नॉट स्क्वायर बेटा, बाय मिस्टेक लिखा गया क्योंकि ये ऊपर 1/2 था ना, तो ये केवल x है, तो यहाँ पे -3x² दिया जाएगा। सिमिलर टर्म्स दी जाएगी, x² है, ये भी x², तो -3x² आ जाएगा। यहाँ पे -2x और -x, और क्या बचेगा +3। सोल्व किया, इसको भी सोल्व किया, देखते क्या आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है।
एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, subscribe the channel and like the channel. Thank you so much.